Firstly, thank you so much for accepting to come live. It really means a lot. My pleasure as well. And I have to say, you're looking very pretty. I love what you're wearing. So It's so pretty. I think अभी ऐसा टाइम आ गया कोरोना की वजह से और हम सब घर पे बैठे ना रेडी होने के मौके नहीं लगते. तो मैं लाइव आती हूँ तभी थोड़े बहुत कुछ पहन लेती हूँ बड़ी खुशी होती है. So it's lovely to see somebody looking so pretty and ready. Thank you so much. Like everybody knows, आप देख सकते हैं the hearts are just blasting away with your name. People are excited that you're here. And I'm not surprised because you know ये time ही ऐसा है जहाँ सबको कुछ ना कुछ solution, एक guidance, एक way out, एक आप जैसे you know एक somebody I think who can guide. I don't know. You are very well said. You know you're a doctor. You can actually cure a lot of things which people might or might not believe. I truly believe क्योंकि मैं खुद अपनी जिंदगी में इतना कुछ देख चुकी हूँ and I've seen these things open up things for me. I don't know if it is the energy or not. So we'll start with you just telling us a little, why Vastu for you? Like, why did you get into this? Like, what was the inclination? See, Daljit, I'm sure you're a Sikh, if I'm not wrong, right? Yes, absolutely. And so is my mother. My mother is a Sikh. So before I started doing it, if you ask me कि मैं अपने से पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से मिली हूँ या काम किया है या बात सुनी है, so no, it's majorly a gift. And the first Vastu, yes, when I was reading more about Vastu after my marriage, and I realized जो मैंने पहली जगह का वास्तु समझा और देखा, that was Bangla Sahib Gurdwara. If you've ever been to Delhi, I have goosebumps right now. Sorry. Yeah. Wow. Really? So Bangla Sahib Gurdwara, it's at a premium location in Delhi. It's the heart of the city. But there's another Gurdwara there at the heart of the city, opposite to Parliament House. It's called Rakabganj Gurdwara. तो दोनों ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं. एक में आपको गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती और दूसरे में लोग ज्यादा आते नहीं हैं. You know, और दोनों ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं. I used to wonder कि ऐसा कैसे हो सकता है. Why is it कि आप एक बड़े मंदिर या बड़े गुरुद्वारे जाते हैं और आपका सबसे बड़ा नोट निकलता है श्रद्धा में, और जब आप अपने घर के पास मंदिर में जाते हैं तो आप ढूंढ के सबसे छोटा नोट निकालते हैं. Is that the energy of the place which is pulling money out of you? Because at the end of the day, temples are the most money making, you know, they're never at loss. So that is how I have understood Vastu, कि तिरुपति बालाजी हो, बंगला साहिब हो, हरमंदर साहिब हो. और फिर जब ये चीजें हमने कुछ फैक्ट्रीज में लगाई, कुछ घरों में लगाई, it worked. So I have experienced Vastu. It's not a coincidence. From a place where they don't believe in it. So that's how the journey began. या एंड आप जो कह रहे हैं ना ये चीज मुझे बहुत इंट्रीग की है क्योंकि वास्तु ऑब्वियसली जितना भी मैंने यू नो किसी से समझा या बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर अ हाउस एंड लॉट ऑफ थिंग्स, एक चीज मुझे जरूर इंट्रीग की. आई डोंट नो इफ इट इज अ कोइंसिडेंस. आई एम श्योर आप उसे मुझे साइंटिफिकली या यू नो थ्योरेटिकली समझा पाओगे. लाइक आई ऑलवेज वंडर, जैसे साउथ बॉम्बे, साउथ मुंबई इज मोर आई थिंक वेल टू डू देन नॉर्थ. अगर हम ग्लोबली भी देखें यू नो नॉर्थ में अंटार्कटिका है. South, you know, in general, South में तिरुपति है. तिरुपति is the richest god. You know, not that North में, you know, हमारे पास, like you said, बंगला साहिब गुरुद्वारा है, अमृतसर है. It's not that. But हम अगर richest god को claim करते हैं, तो वो South में है. तो why is South associated with money or power? Is it a coincidence or it has anything to do with Vastu? This is my question. I've been not just South Mumbai, even South Delhi is much higher and expensive than North Delhi, and so is in different parts of the world also. जैसे अगर आप मेलबर्न जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, सिडनी जाएं, तो जितनी भी साउथ के एरियाज होते हैं, that is the second league of development. जो डेवलपमेंट होती है वो नॉर्थ, फिर उसके बाद वेस्ट, और फिर साउथ में आते आते वो प्रीमियम हो जाती है. That is how it is. So by default अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग डरते हैं कि अरे साउथ फेसिंग घर है, मुझे नहीं लेना है, साउथ फेसिंग में मुझे नहीं रहना है. साउथ डायरेक्शन जो है ये आपका खर्चा करवाती है, लेकिन खर्चे से आपको फेम देती है. सो नाउ इफ यू हैव अ मर्सिडीज एट योर प्लेस और आपके पड़ोसी के पास में बेंटले है, तो ही इज द वन दैट यू विल बी टॉकिंग अबाउट. अरे यार इसके घर के पास बेंटले है, रोल्स रॉयस है, पोर्श है. सो यू विल कीप टॉकिंग अबाउट हिम, यानी कि उसके खर्चे से हमारे घर में वो डिस्कशन बनेगा. सो साउथ की जो डायरेक्शंस होती हैं, चाहे वो घर की हो, ऑफिस की हो, वो आपका खर्चा कराती हैं, लेकिन वो आपको पॉपुलैरिटी देती हैं. एंड सो इज इट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटीज ऑल्सो. तो साउथ में, साउथ मुंबई हो, साउथ दिल्ली हो, घर भी ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे. सो व्हेन यू स्पेंड कर आपको देती है. लेकिन दूसरे के लिए, यानी कि श्री राम के लिए, उनकी पिताजी से
वाइफ किसी और की, और मैं उसको Correct. बचाने के लिए गया और मैं सुपर फेमस हो गया। सो साउथ डायरेक्शन आपको लेकर बहुत कुछ देती है, पर आपको देने के लिए तैयार होना पड़ता है। सो दैट इज लेकिन द मेरा, पावर ऑफ डायरेक्शन। सॉरी आई एम कटिंग यू, बट साउथ के साथ दो तीन चीजें जो मुझे समझ में आती हैं, वो एक ये है कि एक तो उसको इलनेस के साथ एसोसिएट किया जाता है। ये कहा जाता है कि साउथ में जाओगे तो कोई ना कोई बीमार हो जाएगा, somebody will die or something, like एक्सट्रीम चीजें सुनने को आती है जहाँ पे साउथ सुनते साउथ ही में डर नहीं, लगता है। साउथ साउथ वेस्ट में, दैट इज अ साउथ डायरेक्शन बिटवीन वेस्ट। साउथ एंड साउथ वेस्ट। तो हम जब एक डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ या जी साउथ, तो वो सिर्फ जी। नॉर्थ या साउथ नहीं है, एक्चुअली 8 नहीं 16 जोन्स है, दैट इज वेरी वेरी प्रिसाइज। तो हम जब साउथ में रहते हैं तो वो फेम बनता है, जैसे हनुमान जी का कुछ देकर साउथ साउथ वेस्ट में आ जाते हैं और साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वो यम की डायरेक्शन है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ डेथ। तो यस। अगर आप साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे तब ऐसा होगा, नॉट विथ साउथ। सो इलनेस इज नॉट रिलेटेड टू साउथ, इट इज रिलेटेड टू साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट। सो लाइक जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं कि साउथ से इफ आई एम गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, लाइक व्हाट, अगेन मेरा लॉजिक जो है, सॉरी इट माइट बी प्लीज, वेरी एमेच्योर, हैप्पी बट टू जो हेयर मुझे यू। समझ में आता है कि लाइक हम अगर सपोज हम टाउन की बात करते हैं, हम साउथ में, राइट, हम साउथ से जब नॉर्थ की तरफ जाते हैं, इज व्हाट आई फील काइंड ऑफ मेक्स साउथ मोर एफिशिएंट। अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं, आई थिंक दोज पीपल आर नॉट एज एफिशिएंट। डज इट मेक एनी लॉजिकल सेंस इन टर्म्स ऑफ वास्तु? क्योंकि मैंने बहुत जगह पे नोट किया है और मुझे बहुत बड़ा ऐसा लगता है कि यार ये मैं कभी पूछूंगी और मुझे आपसे पूछने का मौका लग रहा है, तो आई रियली वांट टू आस्क दिस। देखिए, जो एनर्जी ऑफ साइकिल है, ये जी बेसिकली हमें समझना है कि हम चल कैसे रहे हैं। तो अगर आप सूरज देखें तो जी। कहते हैं ईस्ट से उगता है, लेकिन थोड़ा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से सूरज होगा। यहाँ अगर हम उसको नॉर्थ ईस्ट पॉइंटिंग बोले, जिसमें लालिमा आता है कि अब खबर आ गई कि सूरज उगने वाला है, और ईस्ट आते आते वो उग जाता है। सो नॉर्थ ईस्ट से ये जो सर्कल चलता है घूमते 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 साउथ में आते हुए पीक पर आ जाता है। तो जब सूरज पीक पे होता है तो हमारा सिस्टम कैसे करता है, तो इसीलिए पहले के टाइम में, अगर अभी भी आप अच्छे डिटॉक्स सेंटर्स में जाएं, जैसे जिंदल्स हो गया, या आप वियना में जाएं, तो वो आपको 12 साढ़े 12 1 बजे तक खूब अच्छे से भारी लंच करा लेंगे। उसके बाद हल्का खाना खिलाएंगे। एज एंड व्हेन सन गोज डाउन आपका यस। पेट भी हल्का रहना चाहिए। सो हम ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी हम एनर्जी ऑफ साइकिल से चल रहे हैं। तो करेक्ट। साउथ जो है दैट इज द पीक। तो साउथ से जब आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं, दैट इज द टाइम जब एक चीज घट रही होती है। और वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जब हम जाते हैं, सो दैट इज द टाइम जब आपकी हिडन चीजें बाहर निकल कर आती है। जितनी चोरी होनी है, बदमाशी होनी है, कोई भी खराब चीज होनी है, कोई भी ऐसी छुपी चीज होनी है, ब्लैक मनी के काम होने हैं, सब मेजरली रात में होते हैं ना। दैट इज द या टाइम व्हेन करेक्ट। सन इज नॉट देयर। सो वेस्ट डायरेक्शन जो होती है, ये अंदर की चीजों को बाहर निकालती है, हिडन चीजें पैरामीटर पर आती हैं। सो जो वेस्ट फेसिंग घर में रहते हैं वो यूजुअली हिडन चीजें, 2 नंबर का काम, या थोड़ा आटे में नमक मिला, उनको अच्छा लगता है, ये उनका बेसिक नेचर हो जाता है। इट इज जी। वेरी सरप्राइजिंग कि आप जब कोई चीज खरीदते हैं, फ्रॉम अ हाँ। हाउस टू अ रेंटल थिंग, आपको 50 ऑप्शंस मिलते हैं। इट इज योर सबकॉन्शियस माइंड दैट गेट्स अट्रैक्टेड टू समथिंग, बिकॉज डेस्टिनी ने आपको वैसे ही घटित कराना है, तो आप उसी तरफ आकर्षित होते हैं। So the सो ट्रू। numbers that you attract, the directions that you attract is part of the bigger divine plan. But if you understand it, you can do little fluctuations in the plan. Little That's bit. what the science is all about. Destiny is a parallel thing that I think nobody can deny. That is Well, something that to exists each on a his parallel. own. हमें कितनी फ्री विल मिली है और कितनी डेस्टिनी मिली है, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, कि हम कितने फ्री विल पर हैं और कितने डेस्टिनी पे हैं। जैसे 60-40 का रेशियो हो सकता है, 90-10 का रेशियो हो सकता है, 0-100 का रेशियो हो सकता है। सम पीपल आर मेजरली डेस्टिनी ड्रिवन। This is लेकिन very like a शास्त्र की food for किताब बोलते thought. हैं, या दैट अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हो, या इफ यू आर एन एलिवेटेड सोल, तो आपके लिए जी। डेस्टिनी नहीं, फ्री विल काम करेगी। सो वी Oh. हैव टू एलिवेट, दैट इज द होल पर्पस। सो सिर्फ वहम में नहीं पढ़ना है, हमें समझना है, वी हैव टू रीच इट, डू इट, टू कम अबव इट। करेक्ट। एंड मेरा बेसिकली पॉइंट ही ये था कि मुझे आपसे यहाँ पे लाइक रूबरू होने का मेरा पॉइंट ये था, क्योंकि ज्यादातर ना सुपरस्टिशन में किसी चीज को चेकआउट करना बड़ा आसान होता है कि यार ये तो वहम है, मुझे पालना ही नहीं है। और दूसरा होता है कि कई लोग ना मतलब राइट में नींबू रख दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उस लेवल पे भी मानते हैं। तो इस चीज का बैलेंस आउट करने के लिए आप जैसे एजुकेटेड और जो लोग एक्चुअली इस चीज को लॉजिकली, साइंटिफिकली, थियोरेटिकली हर चीज को मिक्स करके देख पाते हैं, आई थिंक वी नीड पीपल लाइक यू
you know, who can give the correct kind of guidance. So I'm just, like I said, excited. Acha, now what I want to know na is on a very basic level. जो शायद हमारे जितने व्यूअर्स हैं जो अभी देखेंगे और सेव होने के बाद कई लोग और जुड़ेंगे, बहुत सिंपल मुझे लग रहा है कि आप मुझे एक बताना, जैसे जैसे बड़े हैं सबके घर में अभी, क्योंकि वी ऑल नो कि सिचुएशन क्या है, हम लोग हेल्थ वाइज वी आर ऑल सफरिंग एंड लॉट ऑफ पीपल आर स्केर्ड ऑल्सो. तो डायरेक्शन ऑफ हाउस तो अभी इस वक्त तो कोई चेंज नहीं कर सकता, जिसकी जो एंट्री है वो है. बट आपके हिसाब से सपोज एल्डर्स हैं, तो उनके लिए जो भी रूम, अगर 2 रूम भी है या एक हॉल भी क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए कौन सा डायरेक्शन बेटर है, बच्चों के लिए कौन सा बेटर है, और कोई कपल है जिनमें शायद, क्योंकि अभी मैं डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब इतना सुन रही हूँ, यू नो, बड़ा दिल ऐसे ऐसे हो जाता है कि देर ऑल लॉकडाउन. तो मे बी अ कपल जिनमें बहुत अनबन हो रही हो, तो आप इस डायरेक्शन में रह लो तो इट माइट बी बेटर, और ऑन अ वेरी बेसिक, इन अ वेरी जनरल वे अगर आप कुछ टिप दे पाए तो इट माइट हेल्प आवर व्यूअर्स. देखिए, आइडियली ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता. आप मुंबई में रहती हैं जी, 2 BHK 3 BHK का फ्लैट होगा ना, और इस घर में आकर 5 जने अगर रहने लग जाए तो आप किसको कौन सा कमरा देंगी? सो यू नो समटाइम्स इट्स नॉट सो इजी एंड कंफर्टेबल बट अस. मगर इसका एक हल है. अगर जो आपकी आइडियल डायरेक्शन है, चाहे वो आपका ऑफिस हो चाहे वो आपका घर हो, जो एक पावरफुल डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ वेस्ट. अब क्यों होती है साउथ वेस्ट? आपने सुना होगा हेड ऑफ द फैमिली को साउथ वेस्ट में रहना चाहिए, हेड ऑफ द फैमिली को साउथ वेस्ट में रहना चाहिए. साउथ वेस्ट में सूरज 2 से 4 बजे के बीच में होता है आइडियली. ये वो टाइम होता है जब आप खाना खा के बिल्कुल मस्त, आपको नींद आ रही होती है, मतलब नैप का जो टाइम होता है ना, वो ये टाइम होता है व्हेन यू हैड योर लंच, you're full, और आपको लगता है आप मैं आधा घंटा डिस्टर्ब करूंगी, मुझे कोई बॉदर करता हुआ नहीं चाहिए. तो ये जो प्रोमिनेंस का कमरा है, जो रिलैक्सेशन का कमरा है, अगर हेड ऑफ द फैमिली का हो, पहले के टाइम में लोग काम कर कर आते थे, घर पर खाना खाते थे और आराम करते थे, तो इस डायरेक्शन में आराम करने का कंफर्ट जोन मिलता था क्योंकि सूरज उस तरफ होता था. और ये डायरेक्शन इतनी पावरफुल होती थी कि कोई अंदर नहीं जाता था कि यार पापा सो रहे हैं, अंदर गए तो पिटाई हो जाएगी, इस टाइम डिस्टर्ब नहीं करो. तो ये पावर ओरिएंटेड डायरेक्शन हो गई. अब अगर आपके साउथ वेस्ट में टॉयलेट है या किचन है और आप फ्लैट में रहते हैं और आप अब नहीं कर सकते, अब आप किचन में थोड़ी ना जाकर गद्दा लगाकर सोएंगे. करेक्ट. तो पावरफुल डायरेक्शन में अपनी फोटोग्राफ लगा देने से भी आप उस एनर्जी को वहां डायरेक्ट कर देंगे. सिमिलरली घर के बच्चों को ईस्ट में रुकना चाहिए क्योंकि ईस्ट इज द डायरेक्शन जहां से सूरज उगता है. तो जब सनराइज होता है तो क्या होता है, बर्ड्स निकलते हैं और काम पर जाते हैं, चलो अब हम खाना कमा कर लेकर आएंगे. सो दैट क्रिएट्स अ एनर्जी इन अ चाइल्ड कि यार मुझे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना और खुद कमा कर लाना है. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट. इसीलिए कई लोग जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उन्हें ईस्ट की तरफ सिर कर कर सोना चाहिए क्योंकि आपके दिमाग में एक ही पैरामीटर होना चाहिए कि सुबह होगी तो ग्रोथ होगी, सुबह होगी तो ग्रोथ होगी, आई विल मूव आउट. तो इसलिए ईस्ट की तरफ सिर करके सोने से आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट और एम्बिशन आता है. एंड आई टेल पीपल ट्राई इट ऑन. अपने बिस्तर को तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन तकिए को तो ईस्ट की तरफ रख सकते हो. तो ट्राई एंड स्लीप 15 days like this, 15 days like this and see what you feel. तो किसी भी चीज तकिया मतलब फेस आपका ईस्ट पे होना चाहिए. सो व्हेन वी गेट अप टू द वेस्ट, होता है बेड का हेडबोर्ड. जी, वी हैव एक तो बेड का हेडबोर्ड है जो फिक्स्ड है, आप कुछ नहीं कर सकती हैं उसका. लेकिन आप अपने सिर को तो घुमा सकती हैं, आप 4 तरफ सिर कर सकती है ना. अगर आपका हेडबोर्ड साउथ की तरफ है, आप इधर हो जाएंगी तो वो ईस्ट हो जाएगा ना. तो अपना तकिया इधर रख दिया और ईस्ट की तरफ सिर करके सो गए. तो ईस्ट पे सर होना चाहिए. इसका मतलब नहीं है आप 8 घंटे सो रहे हैं, आपका माइंड किस डायरेक्शन से एनर्जी ले रहा है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. उठ के तो आप बिस्तर से भाग के बाथरूम में जाते हैं. So getting up is not important. Sleeping is what the key is. Okay. तो ईस्ट पे सर होना चाहिए और वेस्ट विजन इज योर गोल. साउथ में सर अगर रिलैक्सेशन इज योर गोल. चाह क्या रहे, what you want out of your life. अब मैं 70 साल के आदमी को ईस्ट की तरफ सिर करा दूंगी तो अपने बच्चों को पावर नहीं देगा. What is needed when? आप 25 साल की लड़की को बोटॉक्स नहीं लगवाएंगे ना, 50 के बाद लगवाएंगे. So what is needed at what point of time in life? Wow. And बड़ों को आपने जैसे कहा साउथ इज बेटर बिकॉज वो रिलैक्स मोड में रहेंगे. वाओ, दिस इज सो वंडरफुल. वेस्ट एंड साउथ, जितनी ज्यादा सन की पावरफुल डायरेक्शंस हैं उतनी ज्यादा हम में पावर बढ़ेगी. अब आप बच्चे को इतनी पावर दे देंगे तो वो आपको डोमिनेट करेगा, सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहा, मेच्योरिटी नहीं है, गलत आदतों में पड़ेगा, आप समझा नहीं पाएंगे. सो दीज आर लिटिल थिंग्स ऑफ लाइफ और बड़ी सिंपल चीजें हैं. अब पहले के टाइम पर अगर मैं आपको बोलती कि दलजीत जी काढ़ा पीजिए आपकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है, तो आप मुझे बोलती पागल हो गई है क्या, व्हाई शुड आई टेक अ काढ़ा. आप कोविड हो गया है तो आप 3 बार काढ़ा पिएंगी.
तो जिंदगी में हालात बड़ा कुछ करा देते हैं. सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि इसको डर के कारण नहीं फॉलो करना चाहिए, इसको समझ के कारण फॉलो करना चाहिए. लेकिन अगर कोई बहुत बीमार है, सपोज कोई अनफॉर्चुनेटली बहुत बीमार है, तो हेल्थ वाइज किसी को रिजुविनेट करने के लिए व्हाट इज द बेस्ट प्लेस फॉर देम? छोटा हो या बड़ा हो, अगर कोई बहुत कंडीशन से जूझ रहा है, so does direction help them in a health it always does to the extent of 35 to 40%. अगर एक घर में 6 लोग रहते हैं और एक को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लेकिन वाइफ किटी पार्टी जा रही है, बच्चे स्कूल मजे से जा रहे हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड व्हाट्स हैपनिंग इन हिज लाइफ. घर का मालिक कौन है, रेंट एग्रीमेंट किसके नाम पर है, हु इज द हेड ऑफ द फैमिली विल बी अफेक्टेड द मोस्ट. द नेक्स्ट पर्सन इज कि अब सेकंड जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, अगर हेड ऑफ द फैमिली ना रहो तो उसके ऊपर सेकंड सबसे ज्यादा अफेक्शन होगा. तो जब हम किसी ट्रीटमेंट को करते हैं एक पर्सन के लिए, तो घर की डायरेक्शन को नहीं छेड़ना चाहिए, उसकी बेडरूम की डायरेक्शन को छोड़ना चाहिए, क्योंकि दैट इज योर डेन, दैट इज योर एरिया. Similarly for people who live in joint family also. So north east is the direction जिसको हम हेल्थ के लिए ठीक कर सकते हैं. अब अगर मुझे हेल्थ को सिग्निफाई करना हो एक शब्द में कि यार हेल्थ अच्छी देता कौन है, तो मैं कहूंगी होली वाटर. जैसे बंगला साहिब में या गुरुद्वारों में अमृत दिया जाता है पीने के लिए, मंदिरों में जो है वो झाड़ा किया जाता है विद पीकॉक फेदर्स, मस्जिद में भी झाड़ा किया जाता है, चर्च में होली वाटर दिया जाता है. सो वाटर एलिमेंट एंड थिंग्स दैट कैन रिमूव डर्ट, जैसे पीकॉक फेदर को अगर आप मिट्टी में डाल दें, गीली मिट्टी में, और बाहर निकाल दें, उसको सूखने दें, उसके बाद हाथ से कुछ नहीं करें, उसको झाड़ दें, उसके ऊपर इतनी सी भी मिट्टी नहीं रहेगी. दैट इज वाई श्री कृष्ण पुट्स हिम ऑन द हेड, क्योंकि वो नेगेटिविटी को नहीं रख सकता अपने साथ. तो नेगेटिविटी को हटाने के लिए पीकॉक फेदर और होली वाटर को नॉर्थ ईस्ट में रख देंगे और डेली अफर्मेशंस के साथ उस पानी को पिएंगे. इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर पर्सनल हेल्थ इन अ बेटर वे, because each day you tell your mind that I am ready to be healed. It's going to. और जो रॉक सॉल्ट बोलते हैं कि वो नेगेटिविटी निकालता है, उससे आप पोछा कर लो, जो बेसिक में मतलब अपने मम्मी वाले जमाने का बोल रहे, जहाँ उनको वास्तु शास्त्र ये नहीं पता था, लेकिन वो बोल देती थी कि एक काम करो तुम ना, वो जो खारा जो बड़ा वाला नमक आता है उसको डालो और उससे पोछा कर लो, उससे चला जाएगा सब. तो समथिंग लाइक दैट वर्क्स, और इज इट जस्ट अ मिथ? देखिए, सॉल्ट की बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो अब्जॉर्प्शन है. नमक का बेसिक काम ही अब्जॉर्ब करना है. तो जब आप सॉल्ट को यूज करते हैं किसी भी जगह पे, तो वहां की नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर देता है. लेकिन अगर वो सॉल्ट मेल्ट नहीं हो रहा, जैसे आजकल आप देखेंगे बहुत सारे रॉक सॉल्ट्स आ रहे हैं जो पिघलते नहीं है, 2 साल तक पड़े रहे, तो वो आप 2 साल तक उस नेगेटिव एनर्जी को रोक के रखे हुए हैं. सॉल्ट मीन्स 24 आवर्स एंड आउट ऑफ योर सिस्टम, चाहे आप इतना सा पीस रखें, because it has absorbed what it is capable of absorbing. But कई लोग तो उसमें प्लास्टिक में रख के कंटेनर में रख के कोने में रख देते हैं कि we'll take it out. Is that like a good practice, or we should not hold salt in one corner? Because you're holding on to negativity. आपके पेट में सिस्ट हो जाए, आपका मैं इसको बड़ा होने देती हूँ और फिर एक बार निकाल दूंगी, तो क्या होगा? How true. मैं बता रही हूँ, क्योंकि मम्मियों के जमाने में क्या होता था, यही होता था, बोलते थे ये पोछा लगा दो चले जाओ. तो मुझे लगता है अब पोछे से तो निकल गया ना, इट इज रिमूव, फिर अगले दिन निकल जाएगा. क्योंकि मम्मियों को पता नहीं था ना इसको वास्तु शास्त्र कहा जाएगा और इसके लिए इतना कुछ साइंस कहा जाएगा. बेचारे बेसिक तरीके से बड़ा करेक्ट चीज बोल देते थे. देखिए, लिटिल थिंग्स आर इनटू आवर सिस्टम इफ वी अंडरस्टैंड, नथिंग लाइक इट. या So just one last question. I wouldn't take much of your time. Just one thing I want to know. जैसे न्यूमरोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजी होती है, वास्तु होता है. अब इन तीनों का, जहां तक मेरा कॉमन सेंस जाता है, तीनों का मिक्स मैच विल ऑब्वियसली लीड टू समथिंग बेटर. जैसे एक मेडिसिन ले ली, दूसरी ले ली, तीसरी ले ली, दैट्स बेसिक. बट मुझे ये पूछना है कि अगर सिर्फ कोई वास्तु फॉलो करे, हाउ मच डू यू वे वास्तु इन टर्म्स ऑफ 60% दिस कैन डेफिनेटली क्योर योर प्रॉब्लम इन जनरल. तो वास्तु को आप कितना वे करते हैं एज अ साइंस, एज अ स्टडी? जी, आप मुंबई में रहती हैं, कितने फ्लोर्स हैं आपकी बिल्डिंग में? 15 या 16? 16 फ्लोर्स जी. तो 16 फ्लोर में, एक फ्लोर में 4 अपार्टमेंट्स हैं जी. तो एक ही डायरेक्शन में अगर 16 घर हो गए, तो क्या 16 लोगों की लाइफ साथ चल रही होगी? नहीं होगा ना ऐसा. लेकिन अपार्टमेंट का स्ट्रक्चर सेम है. सो योर हॉरोस्कोप एंड योर वास्तु हैज टू बी कनेक्टेड. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही डायरेक्शंस में टॉयलेट, जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, नॉर्थ में टॉयलेट, ईस्ट में टॉयलेट में फर्स्ट क्लास जिंदगी चलती है, क्योंकि उनके हॉरोस्कोप में उस प्लैनेट को वही होना चाहिए जो उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया है. इट इज अ वेरी वेरी पर्सनल थिंग.
हमने जेनेरिक इसको बना दिया है क्योंकि केले जैसे बेचने हैं ना, तभी तो मास खरीदेगा। तो दैट इज नॉट द राइट की ऑफ इट। अगर आपको ये पता है कि मेरे कौन से प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है एज पर एस्ट्रोलॉजी, उस प्लैनेट का क्या नंबर है और उसकी क्या डायरेक्शन है, अगर आप इन तीनों चीजों को सिमेट्री बना लेंगी, तभी वो कहानी जो है वो बेस्ट आएगी। लाइक अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप बहुत खूबसूरत दिखती हैं, अगर आप मेकअप कर रही हैं, आपके मैं पूरे मुंह पे मेकअप नहीं लगाऊंगी, सिर्फ लिप्स पे लिपस्टिक लगाऊंगी तो बात नहीं बनेगी। थोड़ा यहाँ भी ब्लश चाहिए, थोड़ा यहाँ भी काजल चाहिए। इट हैज टू बी अ कंप्लीट कोऑर्डिनेटेड स्टोरी टू एनहांस समथिंग। सो इंडिविजुअली 33 33 33, लेकिन अगर साथ में कर दें तो इट इज 99.9। सो ट्रू, क्योंकि मैंने तो हर चीज फॉलो की थी जब मैंने सोचा कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, और ये जो साइंस है अगर इसका कुछ भी इफेक्ट होता है, आई वांट टू डू इट। आई जॉइंड एवरीथिंग टुगेदर एंड आई फेल्ट the change, which is why I started this. Well, I feel for you that you are going to learn it and guide people also, not just do it for yourself. Yes, really, how sweet. Intelligence and inclination. So inclination definitely है, क्योंकि I think ये असाड़ा नहीं है, क्योंकि इतने सारे coincidence लाइफ में नहीं होते. I don't truly believe in coincidence. डेस्टिनी के साथ साथ शहर डेस्टिनी पे चल रहा है. The whole Mumbai is running on destiny. हर एक आर्टिस्ट from top to bottom talk about किस्मत, because that is where they completely understand the intensity of किस्मत. तो जब भी कोई चीज, जब भी कोई लैंड, जैसे टोक्यो, न्यूयॉर्क, मुंबई एक्सपेंसिव हो जाता है, तो उसकी हाई राइज बिल्डिंग्स बन जाती है, क्योंकि लोग ज्यादा और जगह कम, तो ऊंचाई में ले आएंगे ना. तो जितना ज्यादा आप अर्थ से ऊपर जाएंगे, धरती से ऊपर जाएंगे इन द वे ऑफ हाइट, उतना ज्यादा किस्मत रोल प्ले करेगी. सो यस, इन द सिटीज लाइक दिस, जहां पर हमको नीचे कच्ची मिट्टी नहीं मिलती है, दिल्ली में भी स्टिल हैव लिवरेज की गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं बहुत ज्यादा, और बड़ी जगहों पे नॉर्थ में और ज्यादा है. तो कच्ची मिट्टी जो है ये आपको ग्राउंडेडनेस देती है. और हवा, स्काई क्या करती है, देयर इज नो लिमिट, दैट मेक्स यू एम्बिशियस, यू लुक अप, एंड धरती मेक्स यू ग्राउंडेड. सो वी नीड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो जब आप बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हो, तो आपको नंगे पैर जमीन पे चलना चाहिए, नीचे बैठ के खाना खाना चाहिए, बिकॉज ग्राउंड एनर्जी कम हो जाती है, तो किस्मत ज्यादा काम करती है, बिकॉज यू लुक अप, यू शूट अप. बट आपको ऐसा लगता है जैसे जैसे हम लोग, जी, जैसे हम लोग सब सोचते हैं कि ऑब्वियसली अभी तो सबका आई थिंक डायरेक्शन ही है कि भाई जल्दी से जल्दी एक वैक्सीनेशन आए या मेडिसिन आए, तो जो लोग जो भी लैब में काम कर रहे हैं टू फाइंड द मेडिकेशन, whether they believe it or not, just for my knowledge and maybe to some people it might reach out, if they are at a particular direction, does knowledge also, like maybe the chances of finding it earlier can come or something like that? I'm talking about something really big, but still on a very realistic, if we believe in the science, then it might actually be true on that level as well. So is pe aapko kuch, like, you think have you like thought of this? See, there is a particular way of understanding the fact. The fact says कि एक बच्चे को ऑरा स्कैनर्स के साथ में और डिफरेंट मशीन्स के साथ में डिफरेंट डायरेक्शन में दिखा के बोला गया कि तुम इधर देखो और अब पढ़ाई करो इस चैप्टर को, फिर तुम इस डायरेक्शन में इस चैप्टर को करो. सो लॉट ऑफ रिसर्च ऑन थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्लेम कि जब हम नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ, जो कि सूरज के उगने की डायरेक्शन है, उस तरफ जब फेस कर पढ़ते हैं या सोचते हैं, तो एक कुदरती ऑरा हमें हेल्प करता है टू फाइंड सॉल्यूशंस फास्टर. So very surprisingly, lot of places that you see, including big temples, political houses, Sansad, they have very strong northeast and east. तो जब हम नेचर के साथ विद द फ्लो चलते हैं तो स्ट्रगल खत्म हो जाती है. जब आप अगेंस्ट द फ्लो स्विम करते हैं तो पहुंच भी जाते हैं, लेकिन ताकत बहुत लगती है. आई बिलीव इन रिसर्च. जी, so what you're saying is जो रिसर्च कर रहे हैं, जो शायद मेडिकली जो चीज है फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, so it might just enhance them to think faster or to be able to find a solution faster. Yes, this direction increases the aura and makes you think in a more potential way. Intuition और insights इस तरफ से ज्यादा आते हैं. Which is what they need, I think, which is what the whole world is fighting for. This is such a there is always a way out. Humanity ने बहुत बड़ी चीजें, from plague to smallpox to now coronavirus, we have faced it all. We have always come out as winners, but we have to give time some time. How true, and such a beautiful thought and a beautiful advice, and I really hope that I'm sure, like you said, कि चाहे वो संसद हो, चाहे वो मंदिर हो, people already have the knowledge. I think they might not put it into something, but I think everybody is unknowingly following it.
And so sweet, Dr. Jay Madan. You have no idea how much it means to me more than anybody else and my viewers. मुझे पता है कि वो लोग भी incline होते हैं इन चीजों में, and आपकी guidance इतनी real है ना, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप इतने डिग्री यहाँ और ये नॉर्थ और साउथ, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया। आपने जो एग्जाम्पल्स के साथ बताया है ना, आई एम श्योर अगर वहाँ पे मेरी कोई 15-year-old फॉलोअर भी होगी, शी विल ऑल्सो नो व्हाट यू मीन, और जाके मम्मी को बताएगी मुझे आज मैंने ये सीखा। So thank you so much. You've given your valuable time. It really means a lot. Thank you so very much, and I hope I see you soon and your advices are followed, and hopefully stay well, stay blessed. All thank you. Have a great evening. Take care. Thank you. Bye. Thank you. Ji.